Good morning, student. Welcome in 10th English classroom. I am Mrs. Vandana Gamne from Madhyamik Vidyalaya, Nashik, which is run by Krantivir Vasantrao Narayan Rao Naik Education Society, Nashik. We are studying the lesson, A Lesson in a Life of a Beggar, which is written by Sudha Murthy. It is the second lesson of the third unit. We have completed already the 5 parts of this lesson. Today we are going to understand the 6th part of this lesson. Let's understand what is in the 6th part. In last part, it means in a 5th part, we have seen that Meena got totally changed. She was ready to adjust herself in every way. So writer was just watching that the Meena is looking very different. Her change is totally surprising to writer. So she was very surprised to see Meena in this way, but still writer is saying that writer कहती है कि मीना I couldn't stay with you, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, I have to attend the डिनर, मुझे डिनर अटेंड करना है. तो यहाँ पे हमारी मीना जो है एक बाल थोड़े से सफेद हो गए बट बहुत ही चीयरफुल और बहुत ही स्माइलिंग लग रही है. तो रिंकल्स आते हुए भी शी वॉज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर दिख रही है बिकॉज देयर वॉज अ स्माइल ऑन हर फेस. तो वो कहती ओके लेट्स हैव द टी, चलो चाय पीते हैं. तो ये भी राइटर हमारी सहन नहीं कर सकती क्योंकि इतनी बारिश हो रही है, ऐसी बारिश में इसको चाय पीने की सूझ रही. तो ये देखकर तो राइटर बहुत ही स्टार्टर हो जाती है और वो कहती है अरे इट्स पावरिंग. अभी राइटर कह रही है कि अरे तो जोरदार बारिश हो रही. आगे क्या होता है इस 6th पार्ट में हम लोग देख रहे. लेट्स अंडरस्टैंड द 6th पार्ट. As usually, this is a picture of my favorite writer, Sudha Murthy. Look here. So what? We will buy an umbrella and then go to the Grand Hotel, she said. We won't get a taxi in this rain. I grumbled. So what? We will walk. I was very surprised. This wasn't the same Meena I had known. Today, she seemed ready to make any number of adjustments. देखो बहुत सुंदर है. सो व्हाट जब उसे राइटर कहती है अरे वी कांट गो फॉर द टी बिकॉज इट्स पावरिंग, बहुत जोरदार बारिश है, हम लोग चाय नहीं पी सकते, जा सकते इतनी बारिश में. तो मीना की रिएक्शन क्या, सो व्हाट, जो मीना कहती थी अरे थक जाती हूँ मैं और वॉकिंग से किसका फायदा हो. अब मीना कह रही सो व्हाट, बारिश हो रही तो क्या, वी विल बाय एन अम्ब्रेला, चलो हम लोग अम्ब्रेला खरीद लेते, क्या छाता कर लेते एंड देन गो टू द ग्रैंड होटल, और यहीं पे ग्रैंड होटल है, ग्रैंड होटल तक जाते हैं. शी सेड वी वोंट गेट अ टैक्सी इन दिस रेन. आई ग्रम्बल्ड. अब कंप्लेंट कौन कर रहा है, ग्रम्बल्ड करना मतलब कंप्लेंट. हु इज कंप्लेनिंग नाउ, द राइटर इज कंप्लेनिंग, सुधा मूर्ति इज कंप्लेनिंग. और वो क्या कहती है कि वी वोंट गेट अ टैक्सी इन दिस रेन, ऐसी रेन में हमें टैक्सी कहाँ मिलेगी. सो व्हाट, वी विल वॉक. अब देखो मीना रिप्लाई दे रही है सो व्हाट, नहीं मिली तो नहीं मिली टैक्सी, वी विल वॉक, हम लोग वॉक करते जाएंगे. I was very surprised. This was not the same Meena I had known. ये सुनकर तो राइटर टोटली सरप्राइज्ड हो गई that this was not the same मीना, ये मीना नहीं है वो which I had known, जो जिसे मैं जानती हूँ. She seemed ready to make any number of adjustment and this मीना is ready to adjust everything. Adjustment, number of adjustment वो कर रही है. It's raining, we will buy the umbrella. We will go to the Grand Hotel, but there is no taxi. We will walk. ये कौन कह रही है, मीना कह रही है. तो ये सरप्राइज कौन हो जाती है हमारी राइटर से, और बिकॉज शी इज रेडी टू एडजस्ट हरसेल्फ. You can see here these two friends, they are there is a powering rain and Meena is ready to go to the Grand Hotel with a umbrella. She is ready to buy the umbrella. umbrella खरीद कर जाने के लिए तैयार है, टैक्सी नहीं तो पैदल चलने के लिए तैयार है. Then we reached the Grand Hotel drenched. पैदल चलते गए दोनों भी. We reached the Grand, पहले पढ़ लेते. We reached the Grand Hotel drenched. By then, the only thought in my mind was to find out who or what had brought about such a change in the pessimistic Meena I had known. I was quite curious. Tell me, Meena, is there a Prince Charming who has managed to change you so? Actually, there was no taxi. They bought a umbrella and they went to the Grand Hotel. कहाँ चले गए, Grand Hotel में. But what was their condition? They were totally drenched. दोनों भी क्या हो गई थी, पूरी तरह से ड्रेंच हो गई थी. ड्रेंच होना मतलब क्या, पूरी तरह से भीग जाना. By then, the only thought in my mind was to find out who or what had brought about such a change in the pessimistic Meena I had known. So when I reached to the hotel, the only thought in my mind, मेरे दिमाग में एक ही thought आ रहा था. And what was that thought?
हु और व्हाट हैड बॉट अबाउट सच अ चेंज, किसने और क्या, हु मतलब कौन और व्हाट मतलब क्या लाया है ऐसा चेंज इन द पेसिमिस्टिक मीना आई हैड नो, मुझे तो कौन सी मीना मैं जानती हूँ, पेसिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक मतलब बहुत ही निराशावादी मीना में इतना सारा चेंज किसने या क्या लेकर आया है। आई वॉज क्वाइट क्यूरियस, मैं तो बहुत ही क्यूरियस थी, क्यूरियस मतलब उत्सुक थी। टेल मी मीना, इज देयर अ प्रिंस चार्मिंग हु हैज मैनेज टू चेंज यू सो, हाँ मीना देयर मस्ट बी सम प्रिंस चार्मिंग। दो फ्रेंड्स मिलती है तो उन्हें तो लगता है बहुत उम्र हो गई है, तब भी उसे लगता है कि मीना ने शादी नहीं की है, तो कोई प्रिंस चार्मिंग आया है कि उसकी जिंदगी में, प्रिंस कोई लड़का आया है क्या कि जिसने तुम्हें इतना सारा बदलाव लाया है। Look here, both the friends are in a grand hotel. They are totally drenched. They are eating. They are there for having the tea, and they are talking. बात कर रहे हैं कि मीना में इतना सारा बदलाव क्यों आया, वो पूछती है कि ये चेंज किसकी वजह से आया है। इज देयर एनी प्रिंस चार्मिंग इन योर लाइफ, कोई प्रिंस चार्मिंग है क्या तुम्हारी लाइफ में, ये मीना है इसकी लाइफ में कोई प्रिंस चार्मिंग आया है क्या। कौन पूछता है ये, राइटर पूछती है। मीना वॉज सरप्राइज बाय माई क्वेश्चन, और मीना क्या हो गई है, सरप्राइज हो गई है मेरी क्वेश्चन की वजह से। नो देर इजंट एनी वन लाइक दैट, शी सेड। देन व्हाट्स द सीक्रेट ऑफ योर एनर्जी, आई आस्क्ड लाइक तेंदुलकर डज इन द एडवर्टीजमेंट। शी स्माइल्ड, अ बेगर चेंज्ड माई लाइफ, आई वॉज एब्सोल्युटली dumbfounded and she could see it. मीना वॉज सरप्राइज बाय माई क्वेश्चन, मीना जो थी वो पूरी तरह से क्या हो गई, सरप्राइज हो गई मेरे क्वेश्चन की वजह से, क्योंकि मैंने क्या पूछा, इज देयर एनी प्रिंस चार्मिंग इन योर लाइफ, कोई प्रिंस चार्मिंग है क्या, तो ये सुनकर तो मीना सरप्राइज हो जाती है, आश्चर्य की, नो देयर इजंट एनीवन लाइक दैट, कोई नहीं है भाई ऐसा। शी सेड, देन व्हाट्स द सीक्रेट ऑफ योर एनर्जी, आई आस्क लाइक अ तेंदुलकर डज इन द एडवर्टीजमेंट, तेंदुलकर जैसे हमारा सचिन तेंदुलकर एडवर्टीजमेंट में पूछता है ना, किसी विज्ञापन में, व्हाट्स द सीक्रेट ऑफ योर एनर्जी। तो मैंने भी उससे सवाल पूछ लिया। शी स्माइल्ड, अ बेगर चेंज्ड माय लाइफ, उसने क्या जवाब दिया हंसकर, अ बेगर चेंज्ड माय लाइफ, एक बेगर ने मेरी जिंदगी बदल दी, बेगर मतलब भिखारी ने मेरी जिंदगी बदल दी। I was absolutely dumbfounded and she could see it. मैं तो पूरी तरह से एब्सोल्युटली मतलब पूरी तरह से डम्फाउंडेड हो गई, डम्फाउंड मतलब मुंह ही बंद हो गया मेरा, डम्फाउंडेड मतलब अपने आप को मुंह बंद करके पाया मैंने। एंड शी कुड सी इट, और वो देख रही थी। दिस इज द पिक्चर ऑफ अ बेकर हु चेंज द लाइफ ऑफ मीना। क्या देखा बच्चों हम लोगों ने इस पार्ट में, मीना एंड राइटर reached to the grand hotel. They were totally drenched हो गए थे, and only thought came in writer's mind was that what or who changes the मीना, मीना को इस पेसिमिस्टिक मीना को कौन चेंज, किसने चेंज किया। एंड द राइटर वॉज वेरी क्यूरियस टू आस्क हर दैट इज देयर एनी प्रिंस चार्मिंग हु हैव चेंज द मीना, किसी कोई प्रिंस चार्मिंग है क्या कि जिसने मीना को चेंज कर दिया। तो मीना ने कहा, मीना वॉज सरप्राइज दैट देयर इज बाय माई क्वेश्चन, उस क्वेश्चन से वो सरप्राइज हो गई। नो देयर इजंट एनीवन लाइक दैट, कोई ऐसा नहीं है। देन मैंने बहुत फ्रेंड हूं ना, तो फिर बहुत उत्साह से पूछा, जैसे तेंदुलकर इसमें एडवर्टीजमेंट पे पूछा, व्हाट्स द सीक्रेट ऑफ योर एनर्जी, तुम्हारी एनर्जी का सीक्रेट क्या है। और उसने बहुत ही स्माइल से जवाब दिया, अ बेगर चेंज्ड माय लाइफ, एक बेगर जो है ना भिखारी, उसने मेरी जिंदगी बदल दी। ये सुनकर तो मैं तो डम्फाउंडेड रह गई, डम्फाउंडेड मतलब आश्चर्यचकित ही रह गई, एकदम मुंह बंद ही हो गया मेरा, डम्फाउंडेड मतलब मुंह बंद हो गया। एंड शी कुड सी, और उसने वो देखा। तो आई होप कि तुम्हारे ये सब कुछ समझ में आया होगा इस लेसन में, इस पार्ट में हम लोगों ने क्या देखा। नेक्स्ट पार्ट में मतलब सेवंथ पार्ट में क्या होता है, बेगर्स की स्टोरी कहाँ चलती है, वो हम लोग अगले पार्ट में देखेंगे। तब तक धन्यवाद। अगेन वी विल मीट विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द लेसन।